इफ यू हैव एटलीस्ट वर्ड जितने, क्योंकि वर्ड सारा खेल वर्ड्स का। वर्ड्स का है। जितने आपको नाउन्स आती हैं, जितनी आपको वर्ब आती हैं, हियर इज, और इसको ध्यान से पढ़ने के बाद, हियर इज wir haben sechs Fragen, was welche Information ist richtig or falsch, so कौन सी checken Sie फॉल्स? noch einmal und bitte lesen Sie hier, ध्यान से पढ़ना है इसको, हियर, ओके। यस सर। सो हियर इज, willkommen in निन्यास वेल्ट, वर्ल्ड। दुनिया की दुनिया में आपका स्वागत है, ओके। दिस इज ब्लॉग, यस। एंड इसको इसको ध्यान से समझना, यहाँ तक रीड करो विजय लक्ष्मी। हेलो Leute, ich bin zurück aus dem Winterurlaub oder besser von meiner Zeitreise. Die letzten 4 Wochen habe ich mit Robert, meinem Freund, in Österreich in einem kleinen Holzhaus in den Bergen verbracht. Wir waren weit, uh, सर ये क्या बोलेंगे? Wir waren weit von der nächsten Stadt entfernt und haben Wir waren wie weit von der nächsten Stadt entfernt. entfernt und haben wie der Leute vor äh, 100 Jahren gelebt. Äh, schon der Weg zum Vereinhaus war ein Abenteuer. Wir mussten das Auto im Tal auf einem Parkplatz abstellen, weil dort die Straße endet. Dort haben wir unsere Sachen in Rucksäcke gepackt und durch tiefen Genie mit Skyren zum Haus Hawk gebracht. Das dauerte 2 Stunden und weil wir auch alle Lebensmittel, für die wir walken, von, vom Auto zum Haus bringen mussten, war das Gepäck sehr schwer, als wir dann am späten Nachmittag erschöpft am Haus ankamen und uns alles ansahen, war ich erst gar nicht äh, begeistert. Es gab keinen, mm, Es gab keinen Strom, Strom, äh, kein kein Badezimmer. Badezimmer. Die Toilette war draußen in einem Hausen mit Harzfenster in der Tür. Zum Heißen und Kochen gab es nur einen Holzschaffen und das Wasser zum Trinken, Kochen und Waschen mussten wir uns einem Fluss holen. Das war hart, denn der Fluss war ओके, Gef- gefroren. सो क्या मतलब है इसका? इसको बहुत ध्यान से फिर पढ़ने के बाद ही हमें आंसर मिलेंगे, ओके। से पूरा व्लॉग है जिसमें बता सो रही है हियर कि इज, hallo Leute, ich bin Schock aus dem Winterurlaub, I'm back फ्रॉम from विंटर वेकेशन। Oder besser, von meiner Zeitreise and better, von meiner Zeitreise, कुछ साइट राइजे के बारे में, टाइम ट्रैवल के बारे में इसने लिखा है, ओके। Die letzten तो 4 Wochen habe ich mit Robert, last 4 weeks, मैं रॉबर्ट के साथ थी जो ओके, मेरा दोस्त है।
ऑस्ट्रिया से। इन ऑस्ट्राइस, माइनम फ्रॉइन इन ऑस्ट्राइस। मैं अपने दोस्त रॉबर्ट के साथ थी और ऑस्ट्रेलिया में थी, नॉट रॉबर्ट ऑस्ट्रेलिया से, अच्छा। इन ऑस्ट्राइस दैट मीन्स इन ऑस्ट्रेलिया। इन आइनम क्लाइनन हॉल्स हाउस, हॉल्स मीन्स वुडन लकड़ी, हाउस मीन्स घर, लकड़ी का घर। कॉटेज टाइप्स। इन डैन बैरगन फरब्राक्ट, फरब्रिंगन फरब्राक्ट, यस। टू स्पेंड, माउंटेन। स्पेंड। सो लास्ट 4 weeks मैं रॉबर्ट के साथ थी, एंड रॉबर्ट इज माई ऑस्ट्रिया। फ्रेंड, एंड ऑस्ट्रेलिया में थे हम। इन आइनन क्लाइनन हॉल्स हाउस, एक छोटे से लकड़ी के घर में पहाड़ों में, फरब्राक दैट मीन्स स्पेंड। जो लास्ट 4 weeks हैं वो उसने ऐसे स्पेंड किए। वी आर वारन वाइट फॉन डेयर नेक्स्ट स्टार्ट एंड फैट दैट मीन्स अवे। उन हाबन फास्ट वी दी लॉइटे फॉर 100 Jahre gelebt, लेबन गेलेप्ट, पेज 5। हम यस। वी आर वारन वाइट फॉन डेयर, वाइट मीन्स डिस्टेंस पे, दूर। अच्छा। दूर, फार। सो दूर चले गए, हाबन फास्ट, and we the loite for means before, how the people before 100 years gelipt means रहते थे। रहते थे। so इसने ये एक्सपीरियंस किया मे बी। so here is Sean der Weg zum Ferienhaus war ein Abenteuer, कॉटेज, जहाँ पे लाइक आप माउंटेन वगैरह में जाते हैं जो छोटे छोटे घर बने होते हैं, कॉटेज टाइप्स। सो फेरियन हाउस। कॉटेज। war ein Abenteuer, Abenteuer means, एडवेंचरस। ja, richtig. Wir müssten das Auto im Tal auf einen Parkplatz abstellen. Wir müssten, we must to park the auto in Tal means, ताल का मतलब होता है जो लाइक क्या बोलते हैं उसको, जो माउंटेन्स के वैली। बीच में जो गैप होता है ना, हाँ हाँ सर। लाइक जहाँ पे प्लेन एरिया होता है माउंटेन्स के बीच में, उसको ताल यस सर। बोलते हैं। ओके। auf einen Parkplatz abstellen, abstellen that means park, पार्क। पार्क करना। सो हमने हमें अपना जो कार थी वो पार्क करनी पड़ी कहाँ पे, टाल auf einen Parkplatz abstellen। ओके। वाइल के साथ में रीजन देते हैं क्यों करनी पड़ी, बताओ। क्योंकि वहां पे ही सर स्ट्रीट एंड हो रही थी। वाइल डॉट दी स्टार से एंडेड, रोड ही खत्म हो गए थे, इसलिए वहीं पे पार्क करनी पड़ी। डॉट हाबन वियर उनजरे जाखन, इन रुक जाक है गेपाक्ट, बैग में हमारा जो भी सामान था वो हमने बैग में पैक किया। उन ड्यूस टीफन स्ने मिट स्कियन शुम हाउस हॉक गेब्राक्ट, बोलो। और सर इसने बोला कि हमने है ना बैग में पैक कर लिया सारा सामान, और फिर हम्म। हम अ, टीफन के ट्यूफन थ्रू। में ड्यूस टीफन स्ने, डीप, स्ने मीन्स आइस, बर्फ। मिट स्किन शुम हाउस हॉक गेब्राक्ट, कि बहुत और सारी बर्फ को और उसको पार हमने करके हम वहां तक पहुंचे, हॉक स्कीम हाउस गेब्राक्ट। ओके, पहुंचना था। स्कीम करते हुए गए वो। Das dauerte 2 Stunden, कितना टाइम लगा, 2 hours। 2 घंटे। Weil es auch viele Lebensmittel für die vier Wochen vom Auto zum Haus bringen müssten। और हमने सर बहुत सारे ही Weil wir ग्रॉसरी auch alle Lebensmittel, Grocery, खाने पीने का सामान, für die vier Wochen, for the 4 weeks, के लिए। from तो Auto zum Haus, from Auto, ऑटो from the से Auto to the house टू। bringen müssten, हमें रखना था ऑटो से, उसमें सामान रखना था भी 4 weeks के लिए। यस सर। ओके, नेक्स्ट। फिर सर इसमें कि उसकी पैकिंग करना बहुत डिफिकल्ट था। वारदास के पाक जेर श्वेर, पैकिंग हार्ड था भाई। आज Als wir dann am späten Nachmittag total erschöpft am Haus ankommen und alles ansahen। कि सर इसमें बताया कि जो लेट आफ्टरनून में वो सर पहुंचे, और वो टोटली Erschöpft that means एग्जॉस्ट।
एकदम टायर्ड, थक थक जाना। tired, आम हाउस exhausted. अनकॉमन। Mm. आलसवियर दान आम स्पैटन नाक में टाक स्पैटन शाम को लेट तक एकदम टोटल टोटल एयर शाफ्ट दैट मीन्स टोटली लाइक कह सकते हो आप Exhausted, एग्जॉस्ट एकदम exhausted. थका हुआ। वहां पे Mm. घर पहुंचे उन आलस अनजान और बाकी सब देखा। Mm. द वर्ब इज अनजेहन ना पास्ट इज अनजाहन। Mm. वार इज एसन गार्निस्ट begeistert means Uh, can you say excited, excited? begeistert ich bin sehr हाँ, begeistert। खाने के लिए वार excited. इश एस्ट गार्निश्ड पहले तो मैं एक्साइटेड ही नहीं हुई अंडरस्टैंड। वार इश Yeah. एस्ट गार एस्ट मतलब फर्स्ट निस्ट बेगाइस्ट पहले तो एक्साइटमेंट ही नहीं था। एस गाब काइनन स्टॉर्म स्टॉर्म दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। Electricity. एस गाब देर वर Mm. नो इलेक्ट्रिसिटी देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी। काइन बाडे सिमर बाथरूम भी नहीं था। दी टॉयलेट वार द्राउसन Mm. इन einem Hauschen mit Herzfenster in der Tür। ये क्या बात है भाई। और एक टॉयलेट था Eh, और mm. वो तो भी कॉटेज में कॉटेज में बस बाहर और उसके क्या बोलते हियर इज गेट के पास है। मिट हैज फेंस्टर इन देयर टूर। और जो गेट था उसका गेट में ही एक फेंस्टर लगा हुआ था जिससे रोशनी आ रही थी समझ आ रही है। यस। हियर इज मिट हैज फेंस्टर इन देयर टूर। शुम हाइसन उन कॉखन गाब एस नुअर आइनन हॉल हाफन। क्या मतलब है इसका। इससे हाइसन उसको जो हीट से खाना बनाना पड़ा जिसमें उसको सर बहुत टाइम लग गया। सो यानी वुड से खाना गरम बनाना घर पड़ा। को गर्म रखने के लिए और नुअर आइनन हॉल सॉफन केवल लकड़ी थी जलाने के लिए समझ आ रही घर को गर्म रखने के लिए एंड खाना बनाने के लिए। यस। ओके हियर इज उन दास वासर शुम त्रिंकन पानी पीने के लिए। उन दास वासर शुम त्रिंकन kochen und waschen müssten wir aus einen Fluss haulen। haulen that means to pick। नदी पे। हम्म, सो हमें नदी पे पानी भी जाना पड़ा। फ्लूश दैट मीन्स नदी से लेके आना पड़ता था खाने पीने के लिए नहाने के लिए सब काम के लिए हमें पानी का नदी से। फ्लूश दैट मीन्स हॉलन दैट मीन्स लेना पड़ता था। हम्म। दास वार हार्ड दैट वाज हार्ड। इतना भारी है। ओके पढ़ो इसको। देन Then the blues were gefroren. gefroren Gefroren. फ्रीज। अच्छा था। तो ये नदी भी फ्रीज हो गई थी, जमी हुई थी। हम्म। Man müsste also immer erst in Lach ins Eis machen। हम्म, Last in ice cream melted. पानी निकालने के लिए बर्फ में छेद नहीं करते क्या। हाँ 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 सर। छेद करके यहाँ से फोड़ते फिर उसमें से पानी भर के निकालते हैं। हियर इज एस्ट ein Loch इन आइस माखन सबसे पहले तो बर्फ में ही छेद करना पड़ता था समझ आ रही है। यस सर। ओके नेक्स्ट। सर नीचे करना पड़ेगा सर, ऊपर करना पड़ेगा। So man müsste also immer हम्म। erst ein Loch ins Eis machen wenn man Wasser holen wollte। अगर पानी हियर इज देखो बन गया हम्म। बट ये तो वैन की वजह से गया हेलन वोल्ट। अगर आदमी पानी कलेक्ट करना चाहता है हम्म। जेयर abenteuerlich unwisst ihr was और उसको पता भी होता था। सो वो कंटिन्यू रीड बहुत करें इसको एक बार पूनम। अच्छा। Und wisst ihr was? Robert wusste das alles. Führer, er hat mir aber kein Wort gesagt. Ihr kennt sogar den Besitzer des Hauses und erzählte er, mir er sagte mir später, später dass not sparter this is später ना। yes. Später, dass diese in seiner Studienzeit alle Baumaterialien selbst auf den Berg getragen und dann das Haus in 3 Sommer
Monaten, Alien, Gebaut, Hart, Wahnsinn, NASA, wie gesagt, Naya, Naya, wie gesagt, am Anfang dachte ich, es wird furchtbar, wird furchtbar, aber Leute, jetzt kann ich sagen, für immer ist so nicht leben, aber man kann auch ohne Strom äh, Heizung US, USW वे USW einen. सर इतना ही दिख रहा है. इतना ही दिख रहा है. यस सर. So here is Einen okay. Einen tollen Urlaub haben, man braucht dann für viele Dinge länger, aber das ist ja kein Problem, wenn man Zeit hat. Ich bin jeden Fall ab dem zweiten Tag jeden Abend sehr zufrieden und glücklich im Bett gefallen und habe nicht vermisst. Bis bald, euer Nina. Bisbal eure Nina. Nina. So here Vision wusste, Robert wusste das alles for her. For her that means before. रॉबर्ट को तो सब पता था कि भाई इतनी समस्याएं And हैं. समझ आ रही है. yes, sir. Er hat mir aber kein Wort gesagt. उसने एक शब्द भी नहीं कहा मुझसे. समझ आ रही है. उसको पहले ही Yes. पता था बट उसने कुछ नहीं कहा मुझे. Aber keinen Wort. एक भी वर्ड. Er kennt sogar den Besitzer des Haus. Er kennt जोगार इवन. जोगार मीन्स इवन. डैन बेजिस्तर मालिक. जिस हॉक हाउस में रहने उसका जो मालिक था बेजिस्तर डैश हाउस. दिस इज गेनेटिव ना. डैश हाउस Yes. बेजिस्तर डैश हाउस. उन एरसेल्टे मियर स्पेटर. उसको इवन उसको तो ये भी पता था कि इस घर का मालिक कौन है बट उसने मुझे बाद में बताया. अंडरस्टैंड. Yes, sir. एरसेल्टे एरसेलन इज नॉर्मल वर्ब. पास्ट. अगर पास्ट कोई भी इवेंट हम पास्ट इवेंट देख रहे हैं तो पास्ट फॉर्म में ही वर्ब हमें पता होने चाहिए. हमें कई बार लगता है कि ये कुछ अलग है बट ये अलग नहीं है. नॉर्मल वर्ब्स का ये पास्ट फॉर्म है. ये अलग तब नहीं लगेगा जब हमें बहुत सारी वर्ब्स याद होंगी. समझ आ रही है. Yes, sir. Das dieser in einer Studienplatz alle Baumaterial selbst auf den Berg getragen und dann das Haus in 3 Sommermonaten alles allein gebaut hat. ये क्या कह रहा है भाई. सो दास दीजर जाइनर स्टूडियन साइट आले बाउ मटेरियल जो बिल्डिंग मटेरियल जेल्स आउफ डेन बैर्ग गेट्रागन खुद से ही पहाड़ पे लेके गया. बैर्ग गेट्रागन. गेट्रागन मीन हॉल्ट करना साथ में लेके जाना. उन दास हाउस इन ड्राई जॉमर मोनाटन. और जो घर है वो 3 समर मंथ्स में अलाइन के अबाउट हार्ट अकेले ही बनाया उसने. समझ आ रही है. Yes, sir. अनसीन. Crazy. How crazy. So, Ninja, wie gesagt, am Anfang dachte ich. So, am Anfang, that means in starting, Doctor, denken dachte ich. Starting में मैंने सोचा es wird fruchtbar. Fruchtbar means Fruit bar. Fruit bar. बोलो. Fruit bar. So It is terrible. हाँ. Terrible. Terrible. Okay. बहुत बेकार. So drowna in the context of. Aber Leute, yes kann ich sagen. बट अभी मैं कहना चाहती हूँ. यस kann ich sagen. अभी मैं कहना चाहती हूँ. समझ आ रही है. Yes, sir. क्या कहना चाहती है. Für immer möchte ich so nicht leben. Aber man kann auch ohne Stromheizung USB. So this is
Für immer möchte ich so nicht leben, मैं कभी नहीं चाहती थी. Aber man kann auch ohne Strom. People can without electricity, heater and many things einen tollen Urlaub haben. Man braucht dann Great. für viele Dinge länger. लोगों को कुछ आगे का सोचना चाहिए, कुछ बातों के बारे में सोचना चाहिए. Aber das ist ja kein Problem. बट डिपेंडेंसी किसी चीज़ पे होनी दैट अपने यहाँ तो सब कुछ चाहिए बट वहाँ के लोग ट्राई करते रहते हैं, ऐसा कल्चर. समझ आ रही है? Yes, sir. अपने यहाँ तो सब चीज़ें साथ में चाहिए. सो हियर इज वैन मान शाइट हार्ट इफ पीपल हैव टाइम ich bin jedenfalls ab dem zweiten Tag jeden auf der Schuhfrieden und glücklich ins Bett gefallen und habe nichts vermisst. शुरू में तो थोड़ी समस्याएं लगी, समझ आ रही है, Yes, sir. बट धीरे धीरे दूसरे दिन में आदमी एडजस्ट हो जाता है. समझ आ रही है? Yes. Schuhfrieden, that means satisfy. Abendjer Schuhfrieden. Jeden Tag Abendjer Schuhfrieden. Every evening were very satisfying. Und glücklich ins Bett gefallen. मतलब आदमी सेल्फ से खुद करेगा, पानी लेके आएगा तो थकी जाए, नींद तो आनी है उसको. समझ आ रही है? Yes, sir. उन habe nicht vermisst. भूल नहीं सकती मैं. Hmm. Bis bald eure Nina. So this is vlog. सो ऐसे पढ़ना पड़ेगा तब इसके आंसर निकल सकते हैं. समझ आ रही है? हाँ सर. इस मतलब बहुत अच्छे से इसकी टेक्स्ट को लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी करेक्ट आंसर दे पाएंगे हम. समझ आ रही है? Yes, sir. सो हियर इज 6 क्वेश्चंस हैं Mm-hmm. और इनको हियर इज बाइस्पिल. दास हेराइन हाउस वार इन ना है आइनर स्टार्ट. सिटी के पास में था क्या? ना, बहुत दूर था. नहीं. दैट इज फॉल्स इन्फॉर्मेशन. Richtig? Yes, sir. Okay. Nummer 1. Der Weg ist zum Haus war anstrengend. Anstrengend means थका देने वाला. हाँ सर. Der Weg zum हाँ. Haus. Yes, sir. था रिश्तेश. जो रास्ता था सर. हाँ, रास्ता. Weg that means रास्ता. Nina und Robert haben das Essen von zu Hause mitgebracht. सर ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं. ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी. ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर आप लोग ही करेंगे. नहीं सर, वो खाना साथ में नहीं लाए थे, वो वहां जाके उन्होंने बनाया था. So Nina und Robert haben das Essen von zu Hause mitgebracht. घर से ही तो लेके गए थे बनाने बनाने का सामान. वहां तो बनाया था, सामान तो घर से ही लेके गए थे ना. यस सर. ओके, वहां तो कुकिंग की थी उन्होंने. दैट इज ऑल्सो राइट. अब रॉन्ग हो जाता ना तो माइनस मार्क्स हो जाते हैं. बस इतना सही ध्यान रखना होता है इसमें. समझ आ रही है? यस सर. Es war kalt, aber es lag nicht viel Schnee. ये हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, मतलब 30 नंबर का आपका पूरा एग्जाम होता है लेजेंड का. समझ आ रही है? Yes. बस उसका रेशियो है वो 100 में से मिलता है. समझ आ रही है? 60% आपको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं. समझ आ रही है? अगर 30 के अगर लेजेंड की बात करूँ 30 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है. समझ आ रही है? Yes sir. अभी 6 क्वेश्चन है, दैट मीन्स 6 नंबर के क्वेश्चन है और इसका जो रेशियो 100 में से होता है. अगर बात करें तो 3.11 के आसपास आएगा इसका. एक क्वेश्चन की वैल्यू एटलीस्ट 3.1 ऐसा कुछ निकाल लेना एक बार, मार्क्स के बराबर आती है. बट हमें एक ही याद रख लेना है. समझ आ रही है? बट Yes जो sir. हमारा मार्क्स आते हैं वो 100 में से आते हैं. बट पेपर 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स का होता है. ओके. Es war kalt, aber es lag nicht. एस वार थर्ड वाला सर. एस वार काल्ट आबर एस लांग निस्ट फील स्ने. ठंड तो बहुत थी बट बर्फ नहीं थी. सर फॉल्स. फा- फॉल्स. बर्फ थी सर. सर वो स्कीइंग करते हुए गए थे वहां तक. और वो तो पानी भी तो बर्फ फोड़ के निकाल रहे थे. Yes sir. Das Haus gehört einem Bekannten von Robert. ये रॉबर्ट को पहले से पता था. बेकांटन का मतलब होता है नॉन. नॉन. हाँ सर. फॉन का मतलब सर, ऑफ. बिल्कुल. रॉबर्ट मीन्स रॉबर्ट.
वो रॉबर्ट के अरे दास हाउस गेहर्ट, गेहर्ट दैट मीन्स बिलोंग, हम्म। द हाउस बिलोंग आइनन बेकांट फॉन रॉबर्ट, रॉबर्ट के जानकार का था वो घर। यस Yes, सर। sir. वो पक्का? जानता था सर मालिक Yes, को। sir. मालिक को तो पहले से ही जानता था। हाँ, जानकार का था उसके, जानकार का नहीं था बट वो उसे जानता था, क्या जान कैसे? दैट इज राइट और रॉन्ग? राइट। Right, sir. राइट, Rishi. क्योंकि उसे तो पहले सारे सिचुएशन पता ही था। Yes, sir. बट बेकांटन फॉन रॉबर्ट, रॉबर्ट के जानकार का था क्या? नहीं सर, जानता था वो। रॉबर्ट जानकार जानता था, उसके जानकार का नहीं था वो, समझ आ रही है? Das Haus gehört einen Bekannten von Robert. ना, दिस इज रॉन्ग। वो रॉबर्ट के जानकार का नहीं था, रॉबर्ट उसे नॉर्मली जानता था। ओके। Yes, sir. दास Das Haus wurde vor 3 Monaten von Stunden gebaut. Das Haus wurde von 3 Monaten von Stunden gebaut. Falsch. False. ड्राई जॉमर मोनाटन। 3 Monaten Prestige. So this is also false. Nina hat, Nina hat die Zeitreise gut gefallen. नीना को साइट राइजे गूट के फालन सही लगी थी। हाँ सर। ओके। नीना ने कहा है ना शुरू में तो सही नहीं लगा था, बट अभी मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, दैट इज मतलब उसको सही लगा था। समझ आ रही है? Yes, sir. तो ये आपका लेजन, इस तरीके से आपका लेजन होता है। टाइल आइंस था, समझ आ रही है? अब ये तो बहुत बहुत छोटा था, इससे भी तो बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट आएंगे, समझ आ रही है? हाँ सर। बट उनको पढ़ने के लिए स्टिल हमारे पास अच्छे खासे वर्ड्स की लिस्ट होनी चाहिए, हाथ में नहीं दिमाग में। समझ आ रही है? Yes, sir. हाथ में तो फिर वो पकड़ लेते हैं वहाँ पे कि लो ये लिस्ट तो भारी दे जाओ। सो गोइते में चीटिंग करने का चांसेस नहीं होता, समझ आ रही है? सो एक वो तो सर कभी नहीं होता।